बात है? Oh my God, what is that? 500 से ज्यादा फाउंडर्स ने इस गेट से आके जो है देश में स्टार्टअप की ज्वाला को बहुत ज्यादा आग दी है। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अरे बाप, अरे बाप। कुछ हो रहा है यहाँ पे ना जो समझ नहीं आ रहा है। Something is not right. Namaskaram, Sharks. Firstly, congratulations on 5 years of Shark Tank. Thank you. How was your celebration? Very nice. बहुत अच्छी थी. Guess what? हम भी celebration का part थे. And no celebration is complete without a reel. And हमने ये बनाया है सिर्फ 10 मिनट में. Wow. मजा आया Sharks? Nice. Nice. Sweet. Real. Not bad. This is what we do at Flash Shoot. हम हैं कार्तिक, श्रेयक और मणिकंठा, हैदराबाद से, फाउंडर्स ऑफ फ्लैश शूट। फ्लैश शूट एक क्विक कंटेंट सर्विस ऐप है जिसे आप ट्रेन रील मेकर्स आपके स्पेशल मोमेंट्स को कैप्चर करके बस 10 मिनट में एडिट करके डिलीवर करते हैं। शूट से लेके एडिट तक ऑल यू नीड इज अ स्मार्टफोन। क्विक कॉमर्स के ये जमाने में उनका भाई क्विक कंटेंट। Sharks, आज के जमाने में कोई भी एक कंटेंट 1 मिनट से ज्यादा देखता नहीं है। बर्थडे से विदाई तक हर मोमेंट कंटेंट है। एंड हमारे सोशल मीडिया के लिए हमें चाहिए फास्ट ट्रेंडिंग म्यूजिक वाले रील्स जो हम तुरंत अपलोड कर सकें। इसीलिए आज फ्लैश शूट एक नीड ऑफ द आवर है और जिसके लिए हमारा आस्क है 1.5 CR for 2% इक्विटी। शार्क्स, इस रील को तो डील बनता है शार्क। क्या एनर्जी है ये लाइन बोलने में तेरे को? कार्तिक, श्रेयक, मणिकंठा, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। थैंक यू सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप हैदराबाद के हैं, कैसे जानते हैं एक दूसरे को और कब शुरुआत हुई इस बिजनेस की? एक्चुअली हमारे फैमिली बिजनेस है आइसक्रीम सर। इन कोविड आवर आइसक्रीम बिजनेस वाज इन लॉसेस because we were a B2B business. That is when we wanted to put our product in Swiggy, Zomato or any other platforms and sell the products. That's where we started 500 ml ice cream tubs. And that's when we gave these tubs to multiple food bloggers and influencers to promote our brand on Instagram. We got good traction, lots of sales were happening, but then we realized instead of asking or running behind someone else, why don't me and my mom be on the videos and create some content? At that moment, when I went to Google and searched photographer near me, there were random photographers, wedding photographers, whose pages popped up. When I asked them how much do you charge for a video, they told me 15,000 to 20,000. Just imagine we have to post every day to get the traction. It is highly not possible for us to spend so much. That's when I've realized I have to find a solution for this. ठीक है, तो क्या करता है फ्लैश शूट? So we build an app through which anyone can book a reel maker as easy as booking an Uber. So just in 10 minutes to 20 minutes, a nearest reel maker or flash shooter whom we call them gets connected. डेमो दिखाएंगे आप? Yes, sir. आई थिंक उससे बेटर समझ आ जाएगा। So these are the two different packages. It's 1,999 per hour we charge, and there is another package which is 5,000, that is 4,999 plus GST. And you can choose the number of hours. Then you can go and select your add-ons. If you want to add a mic, you want to add a light, or you want to add an extra reel, you can add an extra reel. You can select whether you want an indoor shoot or an outdoor shoot. Here, if you want to shoot for a particular reason, like birthday shoot or wedding or whatever might be the reason. So compared to the photographer, videographer जो नियर बाय एरिया मिल रहे होते हैं versus these, फर्क क्या है? रेगुलर फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर आपको शूट करता है कैमरा पे, हमारा टीम शूट करता है फोन पे। ठीक है। एंड कंपेरेटिव जो कमर्शियल प्राइसिंग होता है उनका, दे आर वेरी प्राइसी। वी ओनली चार्ज 2,000 रुपीज पर आवर। बट से मैं बोलता हूँ कि मैं एक वीडियोग्राफर हूँ, मैं फोन से खींच लूंगा, आपको कैसे पता कि मैं अच्छा कंटेंट शूट कर सकता हूँ? That's where we have this training model. All you need to have is an iPhone.
If you have an iPhone, you can apply in our portal that you want to join Flashshoot. Once you come, we have a 5-filter training model to pick these people, starting from how to dress, how to communicate with the customer, how to take videos in different angles, different lightings. That means the framing. The 4th one, how you edit a video in just 10 minutes. The 5th one, how creative is this person compared to the other person. And do you charge anything for this training? Yes, we charge 1,000 rupees. ये वीडियो हमारा जो बनाया किसने बनाया? So there were 2 people from our team who were just moving around you wearing So that. these are the creators. It's a new segment what we call flash shooters. अबे यार वो उसको साइड में I understand your branding छोड़ देते. Is this a creator or only a videographer? We don't want to call them a creator because these people only shoot with their iPhones. These are not on Instagram and everyone. 3 लोग चाहिए होते हैं एक रील बनाने के लिए, एक जो कैमरा के सामने, एक जो कैमरा के पीछे और एक जो सारा वीडियो एडिटिंग कर रहा है. Correct. आप कैमरा के पीछे वाला प्रोवाइड कर रहे Yes, हैं sir. और जो एडिटिंग कर रहा है. The same person edits. ओके. तो you are sending a creator, मेरे भाई फ्लैश शूटर, ठीक है? Yes. तो वो रील conceptualize भी करेगा? Yes, sir. Okay, so he will conceptualize, shoot it and edit it. But he will not and make UGC content, Anupam. अरे हाँ ठीक He है. will, no. He won't. Yes, sir. He In won't. 10 minutes, he'll edit a video and send it to you. He However will you just want. shoot and edit. He Yes, will sir. not make the content. हाँ, he's not a content creator, he's shooter. बट आजकल आपको पता है छोटे छोटे बच्चे रील बना लेते हैं. इंस्टा का भी अपना ऐप आया है एक एडिट्स करके, उसमें रील बन जाती है. तो इसमें लोग क्यों करेंगे आपके पास स्पेशली आ गए कि मेरे को आपसे एडिट कराना है. सर आई गिव यू एन एग्जांपल. मेरे घर में कोई पार्टी चल रही है, ठीक है? आई एम द बर्थडे बॉय और व्हाटएवर, ठीक है? माय पेरेंट्स विल शूट अ वीडियो बट दे विल नॉट बी एबल टू एडिट बिकॉज़ उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि कैसे एडिट तो करना. आप कह रहे हो ये एक सर्टेन एज ग्रुप के ऊपर के लिए है. नहीं सर्टेन एज ग्रुप के ऊपर के लिए सभी के लिए है. It's about how we capture those moments for you. You will make it look good. Who exactly make you look good? Lots of people doesn't even know the settings what's there in their phone. But we will teach them from setting to lighting. Let's say there is too much lighting. We don't know. As a normal customer, we take random videos. We move the videos, we shake the videos. But these people take it in a professional way. That is where the training comes in. Okay, what are your numbers? We started sales from last August 2024 and August 2024 to March 25, we did total sales of 60 lakhs. And from April 2025 to till now, we did total sales of 2.1 CR. और इसमें से क्रिएटर का कितना अमाउंट होता है आपको? 70% is the cost of services that goes to the creator. अच्छा लास्ट मंथ कितना किया था आपने? Last month we have done 53 lakhs in sales. Interesting है. 31.5 lakhs we paid to the creators and 13.5 lakhs is our contribution margin. I must say मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नंबर इतने अच्छे होंगे. 80% of this is coming from Hyderabad. जो आप बोल रहे हैं ना खराब लाइटिंग है, एंगल्स खराब है, शेकी है, वो सारा कुछ AI ठीक करके will give you a reel in 5 minutes, not even 10 minutes. There is already AI now. Lots of movies are coming up. If you see, movies would have been replaced with AI. Maybe But in why the future. it is not happening? Because people love to watch emotions and certain things AI cannot do is the beat drop. Emotions capture करके shoot करना is the whole point. That is where we create that difference. 75 crores, that means you've raised money? Yeah, we have done 2 rounds before. Wow. In friends and family. कितना पैसा उठाया, कब उठाया? So last June 2024, at 6 crore valuation, we diluted 10%. And Feb 2025, at 22 CR valuation, we diluted 7%. First round was 60 lakhs, second round was 1.5 CR. और अभी 70 crore मांग रहे हैं आप हमारे से. Seeing the current last month sales, our ARR is almost 6.5 CR. No, it's not. That's the GMV. Correct. You have to count your commission only. यार आपका बर्न कितना है? Last month it's minus 10%, minus 4.5 lakhs. फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी Our fixed cost is 15 lakhs per month. This month we are expecting a break even. Why? Because this month we may touch 2,000 shoots per month. So we may do 60 lakhs in sales. 18 lakhs will be our gross, and which is 3 lakhs becoming a profit. break even. Okay. मुझे as a entrepreneur or as a startup, just rather than showing my bottle moving around, the real value जहाँ से मुझे sales आ रहा है on meta marketing is a UGC जो आप बना नहीं पा रहे हैं. All the best, but for today I'm out. I found it very interesting. और you surprised me कि ये भी एक यूज केस है. मैंने सोचा नहीं था. कमाल है यार. बहुत सीखने को मिलते हैं यहाँ पे शार्क टैंक. बट फिलोसॉफिकली मैं आपसे अग्री नहीं कर सकता हूँ.
I don't think जो आप सोच रहे हो वैसा आगे चल के होगा. I think AI will disrupt you completely. That is one big existential threat. So I'm out, guys. Good luck. I like the concept. It's the need of the hour, but it's not the need of the future. AI आ चुका है. Edits ऐप हो, इन वीडियो बहुत सारे ऐप्स हैं. मतलब मेरे को लगता है कि ये कभी भी मतलब it's like there. Disruption is there. Unfortunately, अभी I'll be out. आई थिंक जो हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे AI एडिटिंग वर्सेस योर सर्विस. वन इज एडिटिंग, वन इज शूटिंग. अगर मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा हूँ, आई नीड समवन हु कैन शूट फॉर मी. चैलेंज है आपका वैल्यूएशन. सो अभी आप बोल रहे थे आपने 7 महीने में जो 63 लाख किया, दैट इज योर रेवेन्यू. तो मैं अगर पूरा एक्स्ट्रापोलेट करूंगा साल भर का तो होता है 1 करोड़. 5 या 6 का मल्टीपल भी ऐड करूंगा तो होता है 6 से 7 करोड़ का वैल्यूएशन. सो आई थिंक देयर इज अ बिग मिसमैच. सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट. एक्चुअली इशू यहाँ पे यही है. आप एक्चुअली 2 सर्विसेज बंडल करके दे रहे हैं, जैसे मोहित ने भी बोला कि एक शूटिंग और दूसरा एडिटिंग. मुझे लगता है एडिटिंग लेकिन हुक है, क्योंकि शूटिंग तो लोग कर लेंगे, पर एडिटिंग को लेके लोगों को थोड़ी नर्वसनेस होती है, स्किल नहीं होता है. एडिटिंग तो पूरा AI पे जा रहा है, और जैसी वो एडिटिंग का हुक चला जाएगा, पीपल विल नॉट सी वैल्यू ऑफ पेइंग 2000. इन रीजंस के लिए आई एम आउट गाइस. विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you for making that lovely video for us. Thank you, Yeah, that thank was you. very You've nice. given us a good memory. Yes, you so much. definitely. Thank you, sir. Thank you. Thank you. दोस्तों, बिजनेस का देसी फंडा विद लाहौरी जीरा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. और मैं बात कर रहा हूं जुगाड़ की. सबसे बढ़िया जुगाड़ मेरे साथ 3 भाई जो लोग खड़े हुए हैं उनने करी है. 10 मिनट में आपको ताजा तरीन रील बन के मिलती है. भाई साहब फ्लैशवुड के फाउंडर्स मेरे साथ हैं. जस्ट अभी टैंक से बाहर आए हैं. इन लोगों से बातचीत करते हैं. पहले तो कैसे है हालचाल तुम लोगों की? पिच लंबी चली 10 मिनट से, और आप लोगों ने हमारी रील भी एडिट करी सेलिब्रेशन वाली, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स. कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उसके बारे में बताओ थोड़ा. Overwhelming. You're feeling nice. Okay. आप लोगों ने जो अपना बिजनेस बनाया है, इतने सारे लोगों से कोलैबोरेट करके, इतने सारे आप लोगों के क्रिएटर्स हैं, कैसे आइडिया आया, क्या प्रॉब्लम आप लोगों को लग रही थी जो आपको लगा कि सॉल्व करनी चाहिए? क्विक सर्विस अभी कंटेंट में नहीं है. ये कंटेंट बनाने के लिए बहुत देर लगता है. यूजुअली फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स 1 महीना 2 महीना लेके उनके पीछे दौड़ना पड़ेगा. भाई हमको एडिटेड वीडियो भी जाओ बोल के. लेकिन विद फ्लैश शूट सेम डे यू have your event, you get your edited video ready. All you have to do is take that video, dump it on your social media. So that's what we did. 10 minutes में reel delivery. आप लोग इतने ज्यादा इवेंट्स जाते हो, सबसे स्ट्रेंज टाइप ऑफ इवेंट्स कौन सा आप लोगों ने फ्लैश शूट में शूट किया है? कोई मसालेदार मजेदार इवेंट हम लोगों को हो तो बताओ. Not strange, it's a weird. Okay. Where 11th day ceremony रहता है ना, after someone passes away death. Okay. So people booked flash shoot for that service also. Oh. So it was very weird, but we understood that nowadays memories. That's very nice भाई. आप लोगों की हसल और आप लोगों के बढ़िया बिजनेस को सेलिब्रेट करने के लिए मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग लाहौरी जीरा से एक चीयर्स मेरे साथ कर लें तो मजा आ जाए. Cheers. Cheers. तो दोस्तों, हमारी तो रील इन्होंने जो काट दी है वो मैं डालने जा रहा हूं अपने सोशल मीडिया पे. आप लोग देखते देखते पीते रहो लाहौरी जीरा, क्योंकि हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा. Welcome to Shark Tank India, co-powered by Lahori Zira, Adobe Acrobat, and Crunchyroll, and partner Fixderma. हेलो शार्क्स. हेलो. मेरी जिंदगी में एक ही उद्देश्य है, आलस, आराम और नींद. ये तो 3 हो गए. हाँ. तीनों मिला के एक ही बनता है. और इसी बात पे मैं आप लोगों के लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ. वाह. आप लोग भी इरशाद, ज्यादा- इरशाद. तो भाई अर्ज किया है कि इतनी सी ख्वाहिश होती है सबकी, मुलायम सा तकिया, छोटी सी झपकी. Nice one, good one. थैंक यू सो मच. तो आज होगा मैच ऑफ. वैसे तो फाउंडर्स मेरे साथ आने चाहिए थे, लेकिन इतने कैजुअल हैं कि अपने अपने पॉड्स में लेटे हुए हैं. भाई BLR पॉड्स बाहर आ जाइए, नैटअप को बाहर आ जाइए. How cool the founders are sitting there. क्या बात है, क्या बात है. Hello. शार्क्स, ये हैं आज के हमारे दोनों ब्रांड्स. एक नॉर्थ से हैं, एक साउथ से हैं.
एक कॉर्पोरेट के मंजे हुए खिलाड़ी हैं तो एक के पास है जनरेशनल तजुर्बा। इन दोनों की अप्रोच डिफरेंट है, लेकिन इरादा सिर्फ एक, आप लोगों को कंफर्टेबल, फ्लेक्सिबल और हाइजीनिक स्टे प्रोवाइड करने का। क्या हम लोग टॉस कर सकते हैं? Yes. जो टॉस जीतेगा वो पहले पिच करेगा। चलें, आप कॉल करेंगे? यस। हेड्स। ओके, तो टेल्स आया है। तो भाई नैप टैप गो आपके सामने आएंगे पहले और पिच करेंगे अपना बिजनेस। आर यू गाइस रेडी? रेडी। मे पॉड ब्लेस यू। चलिए। सो शार्क्स, दुनिया तो निकल गई आगे, पर हमारे बजट होटल रह गए हैं वहीं पीछे के पीछे। गेस्ट के लिए पुअर हाइजीन और रिजिड रूल्स, और ओनर्स के लिए हाई इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशनल इश्यूज। इसीलिए हमने अपने बिजनेस और हॉस्पिटैलिटी के कंबाइंड एक्सपीरियंस को यूज करके हॉस्पिटैलिटी के पुराने रूल्स की कायापलट कर रहे हैं। नैपटैप गो एक नेक्स्ट जनरेशन माइक्रो होटल जहां पे गेस्ट्स प्राइवेट पॉड्स बुक कर रहे हैं आर्ली मॉडल में। यानी चेक इन अब गेस्ट की मर्जी से एडजस्ट हो सकता है, चाहे सुबह के 7 बजे हो या रात के 2 बजे। जब भी आओ एक क्लीन पॉड पाओ। और क्लीनलीनेस की बात हुई है तो यहाँ पे कोई हाउसकीपिंग की स्टैंडर्ड सेना नहीं है। ये होता है एआई मॉडल से, और ये रन करता है नैपटैप गो की इन हाउस बनी हुई ऐप पर। तो मतलब आपका स्टे होगा फास्ट, फ्लेक्सिबल और फ्यूचरिस्टिक। बट सबसे इम्प्रेसिव है हमारी स्केलेबिलिटी। हम शहर के मोस्ट पॉपुलर लोकेशंस पर 3 महीनों के अंदर एक नैपटैप गो खड़ा कर सकते हैं। अरे वाह। इसलिए शार्क्स, नैपटैप गो को एक नेशनल फेवरेट बनाने के लिए मैं, नितिन और हिमांशु फ्रॉम दिल्ली मांग रहे हैं 2 करोड़ रुपए 2.5% इक्विटी के बदले। So sharks, are you ready to nap, tap and go? Nitin and Himanshu, welcome to season 5. Thank you. And आपके बारे में बताइए, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, एक दूसरे से कहाँ मिले? तो नमिता, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने MBA किया सिम्बायोसिस से। Okay. फिर मैंने सेमीकंडक्टर कंपनीज में जैसे ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में 15 साल काम किया। उसके बाद मैंने 2015 में अपना पहला स्टार्टअप फाउंड किया जिसका नाम था 24/7 अराउंड। ये एक आफ्टर सेल सर्विस प्लेटफॉर्म था जिसमें होम अप्लायंस की सर्विसेज होती थी। ये स्टार्टअप एक्वायर हुआ 7 साल बाद 2022 में। कितने में एग्जिट हुआ? एग्जिट वाज अराउंड 45 CR। ओह, नॉट बैड। और उसके बाद 2023 में मैंने स्टार्ट किया नैपटैप गो हिमांशु के साथ। Okay. मैं होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की ताज, JP एंड फर्दरमोर। नैपटैप को ज्वाइन करने से पहले आई वाज विद चायोस फॉर 7 years। आप बताएंगे उधर आपका माइक्रो होटल का वीडियो कोई? बिल्कुल। ये हमारा नोएडा होटल का वीडियो है। ये सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन के ऑपोजिट प्लेस्ड है। अच्छा है यार। ये रिसेप्शन एंड लाउंज एरिया है। When you are not inside the pod, you can sit outside। नाइस वाइब यार। So हमने पॉड को एक पॉड रूम कॉन्सेप्ट में डिफाइन किया है, जहाँ पर ये पॉड एक रूम के अंदर प्लेस्ड होते हैं। ये डबल पॉड रूम है जहाँ पर हमने दोनों पॉड्स को एक के ऊपर स्टैक किया है। आप इसको टर्न अराउंड कर दें तो 2 सेपरेट प्राइवेट स्पेस बन जाती है जहाँ पर 2 अलग अलग कस्टमर्स अपने। पर ये रूम के अंदर पॉड रखा हुआ है? जी बिल्कुल। फायदा क्या है, रूम में बना देते हैं। रूम में अगर आप बेड डालेंगे तो एक बंदा होगा। इसमें 2 पॉड्स हैं। अभी आपको दोनों इस तरफ फेस दिख रहे हैं। जो हमारा सिंगल पॉड होता है उसमें ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करता है, ऊपर वाले पॉड का रिवर्स होता है। मतलब आपको एक रूम यहाँ से आप एंटर कर रहे हैं, एक उधर से। तो सेम स्लीपिंग स्पेस में दोनों लोग सो रहे हैं, बट इट इज 2 प्राइवेट रूम्स। ठीक है। इसमें क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता थोड़ा? हमने जब रिसर्च करी थी स्टार्टिंग में तो ये प्रॉब्लम सामने आई थी। 3 से 4% लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है। बट हमने इसीलिए ये स्पेशल पॉड्स बनवाए जो रूम फॉर्म में है और रूम का दरवाजा होता है। जो आपने होटल बनाया है वो स्ट्रक्चर पहले से था और आपने सिर्फ पॉड लगा दिए, और पूरा स्ट्रक्चर भी आप ही ने बनवाया? सर, हम 3000 स्क्वायर फीट टू 5000 स्क्वायर फीट के बीच में एक बेयर शेल स्पेस लेते हैं जहाँ पर छत, दीवारें और कुछ नहीं होता। उसके अंदर हम स्ट्रक्चर करते हैं अपने डिजाइन को, और इसमें 24 से 30 पॉड प्लेस करके एट अ टाइम 3000 स्क्वायर फीट में 25 से 30 लोगों को स्टे करने के ऑप्शंस प्रोवाइड कर लेते हैं। पर कहीं पे ये बिजनेस नो मैन्स लैंड में तो नहीं आ गया है? जैसे मैंने जो पॉड होटल्स देखे हैं जापान में, वो पूरी मतलब ऐसे 3, 4, 5
एक के ऊपर एक स्टैक किए होते हैं, वो ऐसे पूरी लाइन में होते हैं। अभी आपका ऐसे लग रहा है कि आपने एक सॉर्ट ऑफ रेगुलर होटल की बिल्डिंग में पॉड लगा दी। हमने उसी कैटेगरी में फिट करना है अपने आप को। It is a hotel category where, you know, even after you graduate from your college, you start going to a professional life. That is all our TG. A budget hotel with a very high hygiene. पर आप ये हाइजीन और क्वालिटी लेवल्स बिना पॉड के क्यों नहीं डिलीवर कर देते? अगर आप में है शार्क जैसा नजरिया तो खेलिए बी अ होम शार्क और घर बैठे जीतिए ढेरों इनाम। डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ। Can we just understand this like that? एक स्टैंडर्ड बजट होटल, उनका कितना स्क्वायर फुट लगता है टू प्रोवाइड वन बेड? इसको पर बेड की तरह से देखते हैं, राइट? मिनिमम 300 to 350 विथ वॉशरूम उनको स्पेस चाहिए होगा। और आपका वॉशरूम वगैरह गिन के ये 150 में आ जाता है। बिल्कुल। तो यूर सेइंग आपने 50% एफिशिएंसी रियल एस्टेट की कर दी? नहीं, पर आई थिंक यहाँ पे वो वॉशरूम का इशू है। मैं आपको बताता हूँ। वॉशरूम शेयर्ड है। वॉशरूम शेयर्ड है, शेयर्ड भी है और अटैच्ड भी है, दोनों ऑप्शन है। तो वहां पर ज्यादा लगता होगा। तो एवरेज आपका 150 स्क्वायर फुट पड़ता है कि नहीं? फॉर 124 to 30 पॉड होटल आपने बताया 3000 से 5000 स्क्वायर फुट, मैंने 4000 पकड़ा है, तो अप्रोक्सीमेटली यही हुआ। अनुपम, हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है जिसमें 2 रूम्स आएंगे, इट इज ओनली 80 स्क्वायर फीट। नहीं, वैसे नहीं देखते हैं इसको, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। हम इसको कंपेयर करेंगे रेगुलर होटल से। ऑन एन एवरेज अगर हम सारी एरिया को ब्रेक डाउन कर दें ऑन अ पर बेड बेसिस, कितना आता है? तो रफली आपने 150 जो 150 किया स्क्वायर नहीं फुट। आएगा। और जो स्टैंडर्ड बजट होटल्स होते हैं उनका 300 स्क्वायर फीट होता है। बिकॉज उनके कॉमन एरियाज और लॉबीज, लाउंजेस। आपको पता है कि नहीं पता है? ये बताइए। नहीं पता है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर कोई भी होटल चलता है, आप उसका पर बेड एवरेज रेवेन्यू पर बेड देखेंगे, कॉस्ट पर बेड देखेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जस्ट लाइक इन एन एयरलाइन आप पर सीट देखेंगे इकोनॉमिक्स। आपका अगर 150 स्क्वायर फुट बैठ रहा है पर रूम टू प्रोवाइड जॉइंट बाथरूम्स एवरीथिंग, तो फुल क्यों है? एवरेज बजट होटल का क्या 300 स्क्वायर फुट बैठता है, 400 बैठता है, 200 बैठता है? आई डोंट नो। कहीं ज्यादा सर, मतलब 300 से तो काफी ज्यादा स्क्वायर, क्योंकि एक रूम साइज, एक बेड साइज वही इटसेल्फ ही 150 से ऊपर, उसके ऊपर कॉमन पाथवेज, रिसेप्शन, कैफे, भूल जाइए यार। सो यू डोंट नो दैट नंबर, बट ज्यादा होता है। आप 300 350 लेट्स मूव ऑन। एक सेकंड आ जाओ, एक सेकंड जल्दी से। तो आपके यहाँ पे आपने बोला कि किसी को बंद कर सकते हैं, वो तो नहीं है ना, रूम होता है, वो प्रोविजन नहीं है। ये दरवाजा ऐसे ही रहेगा, यस, ये खुला ही रहेगा, ताकि आपको जो आपका क्वेश्चन था क्लॉस्ट्रोफोबिक का वो फील ना हो। पर नॉर्मली जो रूम होते हैं वो बंद नहीं होते ऐसे, ये ऐसे ही रहते हैं। हमने रूम के अंदर डिजाइन किया। आपने कहा था शुरू में कि यू बुक बाय आवर, सो यू बुक बाय आवर और बाय नाइट? We have both options. Okay. And what is the cost, say for a budget hotel per night versus say if I book your pod? We have 2 options. One is the solo pod. Okay. Right, so solo pod is around 1250 rupees a night. और जो pod room है, again for a solo person, is around 1900 a night. और ये आर्ली बेसिस पे क्या होती है इसकी कॉस्ट? Solo pod starts with 600 rupees for 3 hours. मतलब 1 to 3 hours is same, and then 100 rupees per hour gets added. Okay. और कंपैरेटिवली एक बजट होटल का सिंगल रूम कितना होगा? 2 से 2500 के बीच। तो 2500 वर्सेस 1900, वो एक गैप है आपका, है ना? अगर मैं पर नाइट बुक करता हूँ तो आपका एक सेटअप कॉस्ट कितना होता है फॉर 3000 स्क्वायर फीट का अगर एक बनाना हो तो? अभी के लिए तो हमारी 2 यूनिट्स हैं, एक नोएडा सेक्टर 63 विच इज बिजनेस हब के बीच में है, जहाँ पे कस्टमर्स जैसे IBM, पाइन लैब्स, डिलॉयट, ये सारा कस्टमर बेस है हमारा। हाँ। ये टारगेट करते हैं सोलो ट्रैवलर्स को मोस्टली, और 10% डबल ऑक्यूपेंसी भी होता है जी। इसकी कॉस्ट आती है लगभग 85 to 90 lakhs पर प्रॉपर्टी केपेक्स। और अमृतसर वाली यूनिट इज जस्ट 5 minutes फ्रॉम गोल्डन टेम्पल, इट इज इन अ हेरिटेज बिल्डिंग। और रिलीजियस में सेम 24 सेलेबल यूनिट्स बनाते हैं, बट उसमें मोस्ट ऑफ द रूम्स हैव आइदर 2 pods, 3 pods और 4 pods, बिकॉज फैमिलीज आर मोर एक्सपेक्टेड। सो वहाँ पे कॉस्ट आती है लगभग 1.4 CR। ओके। तो ये सब इंपोर्ट हो रहा है अभी? हमारे पास 2 वेंडर्स हैं, जापान और चाइना के।
first shipment was completely imported. This particular shipment we have done 30% localization किया है and we intend to do it further. Got it. एक पॉड का कॉस्ट क्या होता है आपको इंपोर्ट करके? लगभग 1,10,000 रुपए. ओके. और इसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी लगती है? इसकी मेंटेनेंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स यू आर सीइंग दोज कैन गो बैड. खराब हो जाते हैं. खराब हो सकती है क्योंकि यूजेज इतनी ज्यादा है. राइट. वो एक ऐसा दिस इलेक्ट्रॉनिक्स ही है जिसको हम लोकलाइज कर रहे हैं ताकि कुछ इशू आता है चेंज कर दी. बाई चांस अगर कोई वॉल ब्रेक होती है, वैसे दे आर वेरी स्टर्डी, सो बिकॉज दीज कम्स अलग अलग. क्या इंजेक्शन मोल्डेड है पूरा? दिस इज इंजेक्शन. क्योंकि अलग अलग आती हैं तो वी कैन ब्रिंग वन सेपरेट वॉल एंड फिक्स इट. आपने कोई कंपनी का नाम सुना है, BLR Pods? बिल्कुल सर. हाँ, ये जो है सामने, क्या है आपका व्यू उसके बारे में? जो हमने आपको एक रूम कॉन्सेप्ट बताया, इट caters to a wide range of people. ठीक है. For them, it is a only pod kind of a concept where a limited audience would work out. तो आपका रूम्स में है और उनका रूम्स में नहीं है. नहीं, so these are pods which will be like what Kunal was mentioning in Japan. So that is the difference. Let's get to numbers. Right. FY24, we completed 20 lakhs. That was the first 3-4 months of operations. FY25, we completed 1.1 CR. And this year we have already done 1.2 CR and we would be closing at around 3.5 CR. Profit loss भी बताइए. First year loss was around 50-55 lakhs. Second year loss was around 1 CR. और अभी तक इस साल? अभी तक we are at 80-90 lakhs loss. कितना लूज करोगे आप? इस साल हमारा 80 हो गया है और लगभग 12 lakhs a month. So 1.5 crores. फंड रेज करिए अभी तक? फंड रेज 3 राउंड्स करा हुआ है. Okay. Last round we raised that was 1.6 CR at 59 CR valuation. एक क्लियर है कि ये अपॉर्चुनिटी बनेगी, राइट? इंडिया में रियल एस्टेट प्राइसेस आर लॉपसाइडेड, तो ये तो बनना ही है अनक्वेश्चनेबली. क्वेश्चन ये बनता है कि आप कैसे सबसे आगे रहेंगे? फर्स्ट थिंग इज दैट हमने पहले 2 साल जो लगाए इस चीज़ को बिल्ड करने में, 1 से 2 ही होटल तक पहुंचे अभी ऑपरेशनल उसमें. उसका रीज़न था कि हमने अपनी प्लेबुक्स लिखनी शुरू की पहले, कि हमारी फ्रेंचाइजी प्लेबुक क्या होगी, हमारी ट्रेनिंग प्लेबुक क्या होगी. हमने AI मॉडल इंक्लूड किया. हमने अपने वॉशरूम्स लैच सेंसर्स इनेबल किए ताकि जब भी वॉशरूम यूज़ हो, हाउसकीपर ऐप पे पता चल सके कि ये वॉशरूम यूज़ हुआ है, वो क्लीन करे, फोटोज़ क्लिक करे, अपलोड करे, ताकि ऑप्टिमाइज कर सके हाउसकीपिंग की कॉस्ट को, इकोनॉमिक्स के हिसाब से उसको फिट कर सके, मिनिमम स्टाफ में ऑपरेशन कर सके, सिंगल फ्लोर लेने का अपॉर्चुनिटी. गॉट इट. आपने एक प्लेबुक बुक किया. ये पॉड्स तो सबके पास अवेलेबल है. एनीबॉडी कैन इंपोर्ट इट. सो नाउ द ओनली क्वेश्चन बिकम्स कि आप कितनी तेजी से स्केल करोगे बिफोर एवरीबॉडी एल्स कैचेस अप. तो अगले 2 साल में कितने खोलोगे आप? सो हमारी एक्सपेक्टेशन है 15 ऑपरेशनल होटल होगी. आपके कंपटीशन कौन कौन है? मेनली अगर आप देखेंगे तो ऑल अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लस बजट होटल्स लाइक ट्रीबो, फैब, जिंजर. और इस पॉड्स बिजनेस में सबसे बड़ा कौन है? अभी आज की डेट में वी हैव 2 प्रॉपर्टीज. सो मतलब वी आर द लार्जेस्ट टुडे. या आप इनको कंपटीशन नहीं मानते? No, they are absolutely, but you said कौन सबसे बड़ा है, तो आप इनसे बड़े हो. Having 2 properties. But why only 15 in 2 years? Makes no sense. see it will take. भाई एक होटल का कितना रेवेन्यू है पर मंथ? लगभग 14.5 लाख 15 लाख पकड़ लेते हैं एक बार. आप अगर 20 होटल होंगे 2 years में कितना हो गया रेवेन्यू? 25 करोड़ साल का. That's meaningless in this industry. Thank you, Himanshu and Nitin. Thank you. Nice meeting you. नमस्कार शार्क्स, मैं हूँ राजेश बदामी और मैं हूँ नागा कार्तिक दुड्डामणि. मैं आया हूँ एक छोटा सा टाउन होसपेटे कर्नाटका से. धंधा तो मेरे खून में ही है. मेरे फैमिली 1942 से डिस्ट्रिक्ट की सबसे पुरानी और बड़ी होलसेल ग्रोसरी सप्लायर है. बट मेरे लिए खुद को कुछ करना था. काम के लिए मैं जब भी मैं बेंगलोर आता था, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी अकोमोडेशन. या महंगी होटल हो या सेफ्टी या प्राइवेसी पे कॉम्प्रोमाइज करो. हमने वही रूल को तोड़ दिया विद BLR पॉड के साथ.
BLR पॉड एक माइक्रो होटल है जहां आपको मिलेगा होटल का सभी अम्यूनिटीज पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग पर एंड प्राइवेसी के साथ मिलेगा सभी एक ही जगह पर। शार्क्स आज सिर्फ 3000 स्क्वायर फीट्स में हम कंफर्टेबली होस्ट करते हैं 54 गेस्ट को सिंगल और ट्विन पोर्च ऑप्शंस जो एकदम प्रीमियम लगे। हमने ये बिजनेस को बूटस्ट्रैप से खड़े किया है। अब हम रेडी है ये बिजनेस को अगला स्टेप लेने के लिए टेक और एआई के साथ BLR पॉड को पान इंडिया स्केल करने के लिए। आज हमारा आस्क है 1.5% ऑफ इक्विटी फॉर 90 lakhs। Sharks, whenever you check into the BLR pods, you check into the future of hospitality. नागा, कार्तिक एंड राजेश, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। जल्दी से अपने बारे में बताओ, थोड़ा पढ़ाई के बारे में बताओ और थोड़ा कहीं काम किया है तो वो बताओ प्लीज। मैंने पढ़ाई सब कुछ हॉस्पिटल में हुआ और डिग्री में कंप्लीट किया हूँ BBM और मेरा LLB भी कंप्लीट हुआ है। और 2014 में आई मेट विद माय गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या एंड मैरिड इन 2015। ये बड़ा अच्छा था। ये कोई नहीं बताता यूजुअली। ये कोई नहीं बताता। साथ में और 2017 में आई ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। ओके। एक्चुअली लिंक है सर, व्हाई आई शिफ्टेड टू बैंगलोर। अच्छा। सो 2020 में माय सन diagnosed with autism. So unfortunately उधर कोई facilities नहीं था, मेरे को बेंगलुरु में शिफ्ट होना पड़ा। 2024 we started this BLR pod. How is your son now? He's getting the therapies in Bangalore. But he's getting better. Yes. Good to hear. अच्छा राजेश जी, आप? मैं born and brought up in Hospet, कर्नाटक है। अच्छा। 2008 I enrolled for company secretary course and 2011 में मैं company secretary complete हो गया। अब आपका खुद का प्रैक्टिस है या अभी भी जॉब? खुद का प्रैक्टिस है। I am looking after all finance and strategy के बारे में। अभी एक होटल है आपका लाइव है? Yes. ओके, और कुछ वीडियो वगैरह देखने के लिए? हाँ। BLR pods मतलब बैंगलोर pods. Yeah. So this is the lobby, sir. When we enter the guest, this is the lobby and this is the front desk. What we are having. Yeah. Not bad. अच्छा है। Nice. So this is the workspace what we are offering for our guest. Nice, sleek looking. So this is a single pod area. बिल्कुल ऐसे होते हैं जापान और चाइना। नहीं, ये एक्चुअल pod। तो और कितने ऐसे पॉड्स है इस एरिया में? 3000 square feet में we comfortably accommodated 26 single and 14 twin pods. टोटल 54 लोग अकोमोडेट हो सकता है। हाँ, वेरी नाइस। When you say twin pods, मतलब दो लोग अंदर साथ में जा Yes, सकते हैं। yes, sir. 3000 स्क्वायर फुट का होटल खड़ा करने में आपको कितने पैसे लगते हैं? Sir, right now for BLR pods we spend around 1.2 to 1.35 crores. तो पर बेड का कितना हो गया? 3 lakhs per pod. और आप इसमें कितना पैसा कमा पाते हो पर ईयर ऑन अ बेड बेसिस? डायरेक्ट बुकिंग हमको आ गए तो 600 रुपीज पर पॉड हम कमा सकते हैं सर। इनकेस थ्रू OT आ गए तो हमको 230 रुपए आते हैं। आप कितना चार्ज करते हो पर पॉड? सर सिंगल बेड 24 आवर्स के लिए 999 रुपीज प्लस GST। एंड डबल? 1499 plus GST. ये आपने बहुत अच्छा किया जो आपने बहुत एफिशिएंसी ले आए। 3000 स्क्वायर फुट में आपने 54 बेड्स फिट कर दी। 54 गेस्ट को अकोमोडेट कर सकता है। 54 गेस्ट, And राइट? 40 pods, yes. और ये आपके जो सिंगल और डबल है, ये सारा पर नाइट ही है या फिर कॉर्पोरेट के अंदर मुझे 2-3 घंटे का ब्रेक है तो पर आवर भी कुछ मॉडल है आपका? We have a 3 hours, 6 hours, 12 hours and 24 और उसकी कॉस्ट क्या है? So 3 hours we charge 299 plus GST. और ये जो है ना आपका बंद होता है, इनका खुला रहता है, राइट? और आपके इसमें मैंने देखा वो एक की है एंड देयर इज अ प्लेस टू एक्टिवेट द की एंड गो इन। तो आपके ओपिनियन में ये बंद होने के बाद थोड़ा और क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता है? Claustrophobic. Not problem. मैम एक्चुअली आज तक हम 13,000 बेड्स तक सर्व किए। 13,000 में ऑलमोस्ट वी गॉट अराउंड 20 to 25 कस्टमर्स हु आर क्लॉस्ट्रोफोबिक। ओ भाई, Rest all they were fine and we have a repeat rate of 50%. भाई ये मेरे जैसों के लिए तो है नहीं। मैं तो अंदर गया और थोड़ा सा Claustrophobic ना? क्लॉस्ट्रोफोबिक और घुटन हो रही थी। बट ये जिससे आपने बनवाया है ना, सेम है। अगर आप कंट्रोल्स देखोगे, ये वाले कंट्रोल्स और वो वाले कंट्रोल एग्जैक्टली सेम है। Okay. कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट मे बी दिस इज लाइक अ बेसिक मॉडल और दिस इज लाइक एन एडवांस्ड मॉडल। सेम ही फैक्ट्री से बनवाया है। क्या ये बात सही है? Probably yes sir. I don't know. आपको आइडिया नहीं है? नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। थोड़ा नंबर्स बताएंगे? सर 2024 अप्रैल में स्टार्ट किया हूँ सर। 24-25 में हमारा ओवरऑल सेल्स हो गया एनुअल का 66 lakhs। और उस साल क्या था प्रॉफिट? 14 lakhs EBITDA है। आफ्टर टैक्स डिप्रिसिएशन सभी मिला के 73,000 रुपीज इन प्रॉफिट। ये पैट था या पैट, यस। और इस साल अभी तक? इस साल अभी तक 46 lakhs हो गए सेल्स सितंबर 31 तक। का प्रॉफिट? प्रॉफिट 14 lakhs हो गया क्या 46 लाख में 14 लाख का प्रॉफिट? हो गया सर।
14 अगेन EBITDA है और या 14 अगेन। और पैट कितना होगा उसमें? सर इसका पैट में नहीं बना है सर, EBITDA है 24%। ठीक है, लेकिन डिप्रिसिएशन नहीं लिया आपने इसमें? ये साल का सितंबर तक नहीं लिया सर। नहीं, लास्ट ईयर आपने लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन मिला के 73,000 नेट प्रॉफिट आ गया। आप दोनों के रोल्स और इक्विटी स्प्लिट क्या है? मेरा 2% है, इसका 98%। लेकिन आप ज्यादा बात कर रहे हैं। फाइनेंस में देख रहा हूं। और आप फुल टाइम है भी नहीं अभी यहाँ पे, है ना? मैं हर दिन 2 से 3 घंटे इसके बारे में पूरा देखता हूँ सर। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में रेसिड रहता हूँ, ये बेंगलोर में रेसिड रहता है। यू आर नॉट गोइंग टू बिकम फुल टाइम? नो सर, नो। कस्टमर प्रोफाइल क्या है, कौन लोग आते हैं? सो राइट नाउ हम जो बेंगलुरु में दल है सर, वी इट इज एन टेक हब, 70% वी गेट द टेकीज ओनली। अच्छा, इस साल क्या था ऑक्यूपेंसी? सर ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 70% है सर। बैंगलोर जैसी जगह जो इतनी कंजेस्टेड है, there's so much demand, why are you only at 70% occupancy? जो बेंगलुरु का ट्रेंड है, हाइब्रिड का ट्रेंड है मैम। सो मंडे टू फ्राइडे वी गेट ऑल द टेकीज। सो मंडे टू फ्राइडे जो है 100% ऑक्यूपेंसी रहता है। फ्राइडे थोड़ा अराउंड 50 to 60% ऑक्यूपेंसी रहता है। सैटरडे संडे थोड़ा कम होता है मैम। हर जगह तो टेकीज और टेक कंपनीज तो नहीं होते हैं ना, तो जब आप पैन इंडिया स्केल करेंगे, कौन से इंडस्ट्रीज और कैसे कस्टमर्स को टारगेट करेंगे जो ऐसे रह पाएंगे? प्रॉब्लम है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। फॉर इंस्टेंस आई गिव एन एग्जांपल, वी हैड ए कस्टमर, पॉड देखने के बाद डर गया वो, मैं अंदर सोना चाहता हूँ। सो बट वी कन्विंस हिम, सर आप एक दिन सो जाओ, अगर आपको अच्छा नहीं लगा वी विल बुक अदर होटल एट आवर कॉस्ट। हिज एज वाज अराउंड 55, सो लकीली ही स्टेड फॉर 90 days कंटिन्यूअसली। 90 days? यस, इन अ पॉड? यस। तो कार्तिक, अब स्केल कैसे करेंगे और क्या प्लान है आपके? सर राइट नाउ वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड विद द फ्रैंचाइजीज। वी हैव एन इंक्वायरी ऑफ 10 फ्रैंचाइजीज। हाँ, 4 आर अबाउट टू कन्वर्ट। और फ्रेंचाइज मॉडल क्या होने वाला है उसका? टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 1.5 करोड़ होता है सर। हाँ। एंड 7 ईयर का एग्रीमेंट होता है वो। एंड हम कर रहे हैं फोको मॉडल। और जो आपने कहा था कि 4 कन्वर्ट होने वाले फ्रेंचाइजीज, वो कहाँ पे हैं? सर 1 इज हैदराबाद, 2 इन बेंगलोर। आपके टर्म्स क्या है विद द फ्रेंचाइजी? कितना फ्रेंचाइजी फी ले रहे हैं आप? परसेंटेज रेवेन्यू शेयर कितना है? अराउंड 50 फ्रेंचाइजी नेक्स्ट 3 इयर्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना सर। आज का हमारा जो बिजनेस चल रहा है ना सर, 2 to 2.5 lakhs उसको मिल जाएगा। उसके साथ हमको भी अराउंड 5% हमको रॉयल्टी मिलेगा, 5% ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट फीस हम लेंगे, सो हमको 10% मिल जाएगा। तो जो हम 24% EBITDA की बात कर रहे थे, उसको 15-16% मिलेगा, आपको 10%। यस। जो आएगा अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीस पर होटल पर मंथ, क्योंकि आपका रेवेन्यू बैठेगा अबाउट 13-14 lakhs पर होटल पर मंथ एट द रेट ऑफ 70% ऑफ ऑक्यूपेंसी। मेरे माइंड में तो बहुत क्लियर है, गिवन इंडिया में रियल एस्टेट कितना एक्सपेंसिव है, कि यहाँ पर बिजनेसेस अच्छा बनेगा। जीतेगा वही जो सबसे तेज दौड़ेगा। मेरे को ये बताइए कि आप क्यों जीतोगे? What do you have that others cannot replicate? सर यूजर एक्सपीरियंस हम ज्यादा दे रहे हैं सर इसमें। क्या मतलब? सर ये चेक इन होने के बाद आके एक्सप्लेन करने का के लिए हम ह्यूमन रॉइस इंप्लीमेंट करने का चाह रहे हैं सर, उसको डिस्कशन चल रहा है। ह्यूमनॉइड्स? यस सर। क्यों? माय गॉड, यही है डिफरेंशिएशन आपका? सर आएगा एंड हाइजीन होता है एंड उसको ये तो रेप्लिकेबल हो सकता है। आपने कहा यू वांट टू मेक 50 in 3 years? 50 3 इयर्स में, 5 इयर्स में 100 करने का है। आफ्टर 5 years 1 लाख रुपया महीने का आपको मिलेगा पर प्लॉट? एग्जैक्टली। तो कितना हो गया? 10 लाख। एक प्रॉपर्टी को मेरे को 1 लाख रुपए आएगा, सो मतलब 100 करोड़ है। एक मंथ को 1 करोड़ आएगा सर। साल का 10-12 करोड़ हो गया ना, तो वो 5 साल में बोल रहे हो? एग्जैक्टली। तो आज आप 60 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे लेके आए? सर ये जो कॉन्सेप्ट हम बनाए ना सर, एज ए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में हम बनाया, सो पूरा मॉडलिंग दिख रहा है एंड SOP हम बना रहे हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट इसमें कर सकते हैं बोल के हम सब कुछ कर रहे हैं। अभी देखो सम ऑफ द पीपल एक्चुअली हमको एक AC इनलेट आएगा, आउटलेट भी आएगा। वी आर इम्प्लीमेंटिंग 1 more फ्रेश एयर वेंटिलेशन सिस्टम। वैसा चीज हम इंप्रूवमेंट करके सब कुछ हम कर रहे हैं। यू आर डेफिनेटली थिंकिंग अहेड। आपने फायर एक्सटिंग्विशर डाला है, आपने एक सेफ डाला है, वो मैंने देख लिया। Yes, बट दैट अलोन विल नॉट विन द गेम। यस करेक्ट, एग्री सर। वी कंसीडर योर दिस वन। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम बैक। थैंक यू नमिता। हिमांशु और नितिन जी, आपका जो ये पॉड है ना, ये एक्चुअली एक हॉस्टल की ही फील दे रहा है। उसके आसपास खाली प्लास्टिक लगाया हुआ है। पॉड का एक्चुअल जो मतलब होगा ना, वो थोड़ा सा वैसा होगा, जो थोड़ा कवर होगा, थोड़ा प्राइवेसी होगी। एक रूम में एक पॉड, माय गॉड, कभी नहीं सुना हमने। वो तो बिल्कुल ही यूजलेस कॉन्सेप्ट है। मतलब उसमें तो एफिशिएंसी बहुत कम आएगी आपको। तो आई थिंक देयर इज समथिंग नॉट राइट इन योर मॉडल
on pods. Unfortunately, मैं भी आउट हूँ इससे. जो सबसे बड़ा इशू आपके बिजनेस में है वो है ये नो मैन्स लैंड में अभी बिजनेस. ना ये एक प्रॉपर बजट होटल है और ना ही ये एक बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट पॉड होटल है. तो कहीं पे हम ना इधर के ना उधर के. इस रीजन के लिए मैं आज बाहर हूं इससे. विश यू ऑल द बेस्ट. I would agree with Kunal क्योंकि हमने आपके पास BLR pods की भी पिच सुनी and even at 70% capacity वो profitable थे. Optimum utilization of real estate उन्होंने किया है by stacking pods one over the other. आपका customer profile, real estate, positioning इतना sharp नहीं है कि profit बनेगा. And that's clear from your numbers also कि even in the third year of operations आप काफी loss making है at this point. Today I am not getting that confidence, so I'm out. Once you popularize this और लोगों को लगे कि हाँ पॉड एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है, कुछ ब्रांड्स आएंगी जो उसको बड़े लेवल पे स्केल कर पाएंगे और फटाफट कर पाएंगी एंड दे विल बिकम हाउसहोल्ड नेम. मुझे वो कंफर्ट नहीं आ रहा कि आप वो बन सकते हैं एंड दैट इज द रीजन टुडे आई एम आउट. बट गुड लक. क्या लग रहा है भाई? 4 शाख आउट हो गए, धड़कनें बढ़ गई हैं. इतनी जरूरी है इन्वेस्टमेंट? सर, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट की, इसके बारे में क्लैरिटी करना और इसको के बारे में बता पाना. मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये बनेगा क्योंकि इंडिया इज अ लो पर कैपिटा जीडीपी एंड वैल्यू सीकिंग मार्केट. तो 800 से 1000 रुपए में पर नाइट रूम लेने वाले बहुत मिलेंगे, पर्टिकुलरली इफ एकदम स्टैंडर्डाइज हो जाए. उनको लग्जरी की जरूरत नहीं है. राइट. माई प्रॉब्लम इज दैट यू पोजिशन योरसेल्फ एज लग्जरी. आपने एक्सपेक्टेशन ही चेंज कर दिया. ये लग्जरी इसकी डेफिनेशन हो ही नहीं सकती. करेक्ट. एंड आपकी जब मैंने स्पीड ऑफ स्केल के बारे में पूछा, योर एम्बिशंस वर क्वाइट अंडरवेलमिंग. 3 साल में इसके 100 होटल होने चाहिए, अदरवाइज द गेम्स ओवर. आई एम आउट. गुड लक. All the best, guys. Thank you. Thank you. Thanks. नागा, कार्तिक एंड राजेश. यस मैम. एक अच्छी बात आप में ये है कि बहुत एक फोकस्ड पोजीशनिंग है कि हम टेकीज के पीछे जाएंगे, हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस करेंगे, एक के ऊपर एक डालेंगे. तो वो मुझे आपके बारे में पसंद आया और इसलिए आपके प्रॉफिट्स भी है. यस. लेकिन मुझे ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है टू स्केल बियॉन्ड एन इंडस्ट्री स्पेसिफिक यूज केस. अवेयरनेस क्रिएट करके टू गो टू पैन इंडिया लेवल, आई एम मे बी नॉट एबल टू विजुअलाइज इट राइट नाउ एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. थैंक यू. राजेश एंड नागा कार्तिक, आई एम कन्विंस्ड ये बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है. यस सर. द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएशन क्या है? एनीबडी कैन डू दिस. एग्जैक्टली. पॉड्स पे आपका कोई राइट नहीं है, टेक्नोलॉजी में कोई ऐसी बात नहीं है. तो वो बात मुझे डिफरेंशिएटिंग की आज दिखी नहीं एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. गुड लक. थैंक यू सर. इसके यूज केसेस डिफाइन होंगे. आपके शॉर्ट रेंटल हो सकता है कि मैं क्विक नैप के लिए यूज करूं, या एज अ होटल हो सकता है, या इवन एज अ पीजी. राइट. क्योंकि अभी वो क्लियर है नहीं एंड दिस इज स्टिल अ वेरी कॉन्सेप्ट स्टेज. आई विल बी आउट टुडे बट गुड लक. थैंक यू सर. Between the two companies, मुझे आपकी कंपनी पसंद आई. थैंक यू सर. थैंक यू सर. लेकिन डिफरेंशिएशन में इश्यू है. मुझे ना ये बिजनेस देख के थोड़े से वो अर्ली डेज ऑफ इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स की याद आ रही है. मतलब चांदनी चौक, सदर बाजार, सब जगह से भी सब लोग इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर के इंपोर्टर बन गए थे क्योंकि सबको लगा ये अब एक स्पेस बड़ा होने वाला. तो अभी ये क्लियर नहीं है कि इसमें से विनर कौन इमर्ज हो. तो आज मैं इससे बाहर हूं बट विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू सर. आई डोंट थिंक कि पॉड मार्केट इंडिया में इतनी ग्रो कर सकती है. कोरिया में, जापान में चल रहा है, वो इंडिया में कॉपी करके जरूरी नहीं है चलेगा. इंडिया एक यूनिक मार्केट है. क्या पता यहाँ पे कुछ इंडियंस बड़े स्मार्ट और इनोवेटिव होते हैं कि छोटे कमरे भी बना सकते हैं, प्राइसिंग का कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करके ना इंडिया कर लेगी कुछ जुगाड़.
मेरे को ये पॉड एज अ कॉन्सेप्ट एक लेवल के बाहर ऊपर जाता हुआ नहीं दिखा, तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू सर। भाई स्टार्टअप्स में ना टाइम और रिसोर्सेज के अलावा पेशेंस की भी खूब जरूरत पड़ती है, इसलिए स्मार्ट फाउंडर्स ग्लोबली ट्रस्टेड टूल्स यूज करते हैं, क्योंकि जुगाड़ सिर्फ चाय के साथ अच्छा लगता है, पिच के साथ नहीं। एक्रोबैट पीडीएफ स्पेसेस से आपको क्या फायदा है? पिच डेक, नंबर्स, प्लान्स सब एक ही जगह। वो फाइनल अंडरस्कोर V7 वाला कंफ्यूजन नहीं, और शार्पन्ड प्रोफेशनल टेम्पलेट्स हैं जिससे पिच आपकी वेल प्रिपेयर्ड लगती है, भले ही आपने रात में 3 बजे बनाई हो। अब डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। प्रोफेशनल ग्रेड सिक्योरिटी, पासवर्ड प्रोटेक्ट करो, क्योंकि स्ट्रैटेजी सबके लिए नहीं होती। सो दोस्तों, न्यू एज स्टार्टअप का फंडा एकदम सिंपल है, काम फास्ट, डॉक्यूमेंट स्मार्ट और पिचिंग थोड़ी सी फनी, लेकिन एकदम प्रोफेशनल।